A voter turnout of 13.04% was recorded till 9 a.m. in the first phase of the Jharkhand Assembly elections, as per the Election Commission of India. Voting for the first phase of the Jharkhand Assembly elections began on Wednesday morning, with voting taking place in 43 out of the state's 81 seats. As per the data shared by the ECI, as of 9 a.m., Simdega district is leading with 15.09% turnout, followed by Lohar Daga and Kodarma with 14.97%. The voter turnout for Saraikela Kharsawan is 14.62%, Ramgarh and Khunti is 14.37%, Gumla is 13.93%, West Singhbum and Latehar is 13.80%, Garhwa is 13.41%, Hazaribagh is 13.20%. According to the ECI, the state's capital city, Ranchi, recorded a turnout of 12.06%, while the district of Palamu recorded 11.84%. The lowest voter turnout of 11.25% is recorded in East Singhbum district. As polling is underway, Jharkhand police is using drones for surveillance in Ranchi. Meanwhile, Union Minister Annapurna Devi cast a vote at a polling station in Kodarma and urged everyone to participate in the great festival of democracy by casting their votes. Jharkhand Governor Santosh Kumar Gangwar also cast his vote in the first phase of state assembly polls and appealed to the people of the state to use their vote wisely and come out in large numbers. The polling for Jharkhand's first phase began at around 7 a.m. with voters across 43 constituencies in 15 districts casting the ballots. The results will determine the fate of 683 candidates, including 73 women. Voting also began this morning in the by-elections for 31 assembly seats across 10 states, including the Wayanad Lok Sabha constituency in Kerala. Elaborate security arrangements have been made for polling, which will continue until 5 p.m. It will end at 4 p.m. at 950 sensitive booths spread across 31 constituencies. Over 200 companies of security forces have been deployed at strategic locations to maintain order and safeguard the electoral process. The BJP-led NDA is aiming to unseat the JMM-led coalition with key candidates such as former Chief Minister Champai Soren and Congress leader Ajoy Kumar in the fray. Key candidates in the first phase of Jharkhand's assembly elections include former Chief Minister Champai Soren in Saraikela and Ajoy Kumar, Congress, in Jamshedpur East, where he is facing Purnima Das Sahu, daughter-in-law of former Chief Minister Raghubar Das. In Jagannathpur, BJP's Geeta Koda, wife of former Chief Minister Madhu Koda, is contesting against Congress leader Sona Ram Singhu. The Jharkhand Mukti Morcha has nominated sitting Rajya Sabha MP Mahua Maji from Ranchi. Counting of votes is scheduled for November 23rd. देखिए, आज झारखंड प्रदेश में पहले चरण का मतदान है और छत्तीसगढ़ में एक विधानसभा रायपुर दक्षिण में उपचुनाव का मतदान है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और रायपुर दक्षिण में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से हमारे जो प्रत्याशी हैं श्री सुनील सोनी जी वो जीत रहे हैं। देखिए, आदिवासी समाज के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर उसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है और बिरसा मुंडा जी भगवान की तरह पूजे जाते हैं। वो अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़े और शहीद हुए। मात्र 25 साल की अवस्था में वो शहीद हो गए और जनजातीय समाज का आजादी की लड़ाई में बहुत योगदान रहा। अनेक हमारे जनजातीय समाज के योद्धा हुए। तो 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस है। उस उपलक्ष्य में आज जसपुर से माटी के वीर पदयात्रा का शुभारंभ हो रहा है। हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के उपलक्ष्य में जनजातियों जो योद्धा हुए उनके सम्मान के लिए और इसका शुभारंभ हमारे केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया वो कर रहे हैं और इसमें हमारे प्रदेश के मंत्री, सांसद, विधायक और पूरे जिले के हजारों वॉलंटियर्स, यूथ पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। लोकतंत्र के बारे में बिल्कुल ऐतिहासिक यह सच है कि यह जनता का
जनता के लिए जनता द्वारा शासन है और उसकी ताकत का मूल स्रोत मतदान ही है। लोकतंत्र में यह सबसे सात्विक पवित्र धर्म है, कर्म है और इसी के द्वारा हम लोकतांत्रिक सरकार, जनप्रतिनिधि चुनते हैं और उनको लोकतांत्रिक तौर तरीके से काम करने का दायित्व देते हैं, अपने मनचाहे समाज को बनाने के लिए, एक बेहतर भारत को बनाने के लिए, बेहतर राज्य को बनाने के लिए, सुशासन के लिए और जो कुछ हम चाहते हैं कि समाज में कमियां उन्हें दूर करने के लिए। यह सबसे पवित्र काम है और हर व्यक्ति को जो भी लोकतंत्र में चाहता है कि हमारी व्यवस्था हमारी अपनी इच्छा के अनुसार बेहतर हो, इस रास्ते चले, उसमें यही सबसे बड़ा हथियार है। बिना इस हथियार के इस्तेमाल किए अगर आप चाहते हैं कि समाज बदले, देश बदले, आपके आसपास की स्थितियां बदले, तो शायद लोकतंत्र के प्रति आप सही धर्म का निर्वाह नहीं कर रहे। झारखंड जिन सपनों को लेकर बना था, वो सपने, वो मुकाम हासिल हों, यह प्रयास हमें करना चाहिए। अभी उस मंजिल से हम बहुत दूर हैं। जमशेदपुर की जनता के अपार प्यार मिला है। हर जगह से रिपोर्ट इतनी अच्छी आ रही है। जमशेदपुर की जनता, हमारे कार्यकर्ता जितने भी जो है, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने हम लोग का हौसला बढ़ाया है और हमेशा कहते हैं कि हमारी लड़ाई एक विशेष परिवार से ही था और उनके जिस तरह से उन्होंने शहर को कब्जा करने की 30 साल से उनकी साम्राज्य या गुंडा राज जो भी बोलिएगा चल रहा है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। हम लड़ते रहेंगे उस लड़ाई में। मैं यहाँ आज खिलाड़ी साहिब में मतदान करने के लिए आया हूँ। मतदान हर किसी का एक मौलिक अधिकार 5 साल में जिसका उपयोग अपने राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए विधानसभा के लिए और देश के लिए पार्लियामेंट का चुनाव में मतदान करना चाहिए। इसके अलावा भी स्थानीय निकायों की चुनाव होती है, सब में भाग लेना चाहिए। जनप्रतिनिधि व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, लोकतंत्र उतना मजबूत होगा। जन आकांक्षाओं को समझ करके जब जनता अपना मत देती है तो जनप्रतिनिधि को इस बात का ध्यान रखते हुए कि राज्य के नीतियों में, देश के नीतियों में आम जनता और उनके हितों की रक्षा की जा सके। आज जो हमने मतदान किया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य के भविष्य को हम उज्जवल भविष्य की तरफ कैसे ले जाएं। यहाँ से जो प्रतिनिधि जिनके पक्ष में हमने मतदान किया है, हमें आशा है कि इसी तरीके से खरसवां की जनता मतदान आज कर रहे हैं और हमारे प्रत्याशी जीतेंगे और आने वाले दिनों में नीतिपरक विषयों पर एक महत्वपूर्ण भूमिका जहां निभाएंगे, वह विकासात्मक कार्य योजना में उसकी अच्छी भागीदारी होगी कि वो जन आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल हो रहे हैं। देखिए, झारखंड को विकास युक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। नौजवानों को नौकरी और रोजगार से जोड़ना है और महिलाओं का मान, सम्मान और अनाचार और अत्याचार से बचाना है। और जो खनिज संपदा प्रकृति ने दिया है, उसको लूटने और लुटवाने से बचना है। और साथ में जिस प्रकार का गवर्नेंस समाज उपयोगी और समाजोन्मुखी बनना चाहिए, वो बनाने का भी संकल्प आने वाली सरकार, डबल इंजन की सरकार ले। देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठी झारखंड को तबाह किया हुआ है। आज अराजकता की स्थिति है, डेमोग्राफी में परिवर्तन आ रहा है और हमारे आर्थिक संसाधन पर वो काबिज हुए। जो भारत विरोधी शक्तियां हैं, देशद्रोही शक्तियां हैं, वहां पर फिर से सक्रिय होकर के भारत को कमजोर करने की साजिश रच रही है। हमारी बहनों के साथ लव जिहाद किया जाता है, लैंड जिहाद किया जाता है और जब इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ये कानून अपना काम करती है तो घबराहट और बौखलाहट क्यों होता है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोगों को? सीधा क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों को समर्थन और संरक्षण देने वाली ये सरकार है और इसको वोट बैंक के दृष्टि से
एकत्र करके अपने लिए उपयोग करना चाहती है। देखिए, निश्चित रूप से जो हम लोगों ने 5 वर्षों में काम किया है, जो युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, तमाम झारखंड के लोगों को झारखंडी अस्मिता की जो हमने लड़ाई लड़ी है और जो हमने उनको अधिकार देने का काम शुरू किया है, जो पिछले 15 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वो नहीं हुआ था। आप जानते हैं डबल इंजन की सरकार में 24 लोगों की भूख से मौत हुई थी। इस तरह का कोई इंस्टांस नहीं आया। कोरोना में हमने लड़ाई लड़ी और लगातार हम लड़ाई लड़ते रहे, चाहे कोरोना के खिलाफ, चाहे जो अधिकारों से वंचित करने वाली एजेंसियां हैं वो लगी रही, बावजूद हम काम करते रहे। उस काम को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। लोगों, जो झारखंड के लोग हैं, उनको उनका हक और हुकूक देना चाहते हैं। इस वजह से हम आज मैदान में। उम्मीद तो अच्छी है, इसलिए अच्छी है कि हमने काम किया है, हम लोगों के बीच रहे हैं, हमने कैंपेन तरीके से किया। हमारे तमाम नेता यहां आए और उन्होंने जो बातें कही है वो रियलिस्टिक है, लोगों ने विश्वास किया है और हम समझते हैं कि जो आज चुनाव हो रहा है उसमें अधिकतर सीटों पर हम जीतने जा रहे हैं। ये सही है कि हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से दावे करेगी, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे दावों में दम है। निश्चित रूप से आप जानते हैं, जो देश की आवाज है, जो देश की धड़कन है, वैसी हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, आज उनका चुनाव है और जीत सुनिश्चित है। गांधी परिवार से वायनाड का लगाव देश ही नहीं दुनिया जानती है। तो हम समझते हैं कि चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, मतदान करते हैं, कर रहे हैं और जीत प्रियंका गांधी जी की सुनिश्चित।